اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ اپنی طاقت و صحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں۔ اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں۔ مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9890963757۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا۔ اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، ترقی کریں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے اور چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، آئندہ کل یعنی 29 اکتوبر کو بعد نماز مغرب مدھیہ پردیش کے کھرگون شہر میں سبزی منڈی، اردو میدان، جو ایک بڑا میدان ہے سبزی منڈی کا، وہاں پر ایک بہت ہی شاندار پروگرام جمعیت علماء ارشد مدنی کی جانب سے جلسہ سیرت النبی و اصلاح معاشرہ کے عنوان سے منعقد کیا گیا ہے، جس میں میں خود مقرر خصوصی کے طور پر جا رہا ہوں۔ ایک شاندار پروگرام ہوگا وہاں پر، اور آپ جانتے ہیں کہ کھرگون میں باقاعدہ جمعیت علماء کا ایک بڑا نیٹ ورک ہے، بڑا کام ہے، اور کھرگون والے بڑے متحرک ہیں، کھرگون کے لوگ بڑے ایکٹیو ہیں۔ ہم دعائیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کھرگون کو امن و امان نصیب فرمائیں، اور کھرگون میں سچی ایکتا، محبت، پیار اللہ کھرگون کو نصیب فرمائیں۔ اور جمعیت علماء کا یہ جو پروگرام ہو رہا ہے، کھرگون کے آس پاس کے لوگ اس اعلان کو ضرور سنیں، دوسروں تک پہنچائے، اور آئندہ کل بعد نماز مغرب سبزی منڈی اردو میدان میں ضرور پہنچے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے تلنگانہ سے۔ جی ہاں، جو گھٹیا اور نیچ حرکت مہاراشٹر میں ہوئی اور بھی اسٹیٹ میں ہوئی، بی جے پی کی وہ گھٹیا اور نیچ حرکت کیا ہے کہ جہاں ہار جاتے ہیں وہاں پر ودھایکوں کو ڈرانا، دھمکانا، ای ڈی، سی بی آئی یا کروڑوں کھوکے، جیسے مہاراشٹر میں چلا تھا 50 کھوکے باقی سب اوکے۔ تو وہی نیچ اور گھٹیا حرکت بی جے پی نے تلنگانہ میں کی، اور تلنگانہ میں ٹی آر ایس کے جو ممبران اسمبلی یعنی ودھایک ہے ان کی خرید و فروخت کا معاملہ سامنے آیا، جس میں 3 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ تلنگانہ میں بی جے پی کے خلاف زبردست غصہ لوگوں میں پھوٹ پڑا، احتجاج آندولن جگہ جگہ جاری ہو گیا، اور مودی جی کے پتلے بھی جلائے گئے، اور وزراء نے راستہ روک کر آندولن کیا۔ آخر بی جے پی عدالت پہنچی، ایس آئی ٹی کی تشکیل کی درخواست کی بی جے پی نے۔ وہیں پر ریاستی وزیر ٹی سرینواسن نے الزام لگایا ہے کہ بی جے پی نے
चुनी हुई मुंतखब हुकूमत को गिराने की आदत बना ली है। यानी ये सिर्फ तेलंगाना ही में नहीं बल्कि हर जगह बीजेपी यही घटिया और नीच हरकत कर रही है जिस पर रोक लगनी चाहिए। लोग कह रहे हैं कि कुछ ऐसा कानून बनना चाहिए कि अगर आप एक बार किसी पार्टी से जीत गए तो अब अगले इलेक्शन तक के आप दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते, वरना इलेक्शन की भी अहमियत खत्म हो जा रही है। जहां लोग दूसरी पार्टियों से जीत रहे हैं, बीजेपी या तो उनको ईडी का डर दिखा रही है या सीबीआई का डर या फिर इतना रुपया दे रही है कि वो सपने में सोच भी नहीं सकते और बीजेपी वहां फिर विधायकों को खरीद लेती है। तो अगर ऐसे ही हुआ और इस पर रोक नहीं लगाई गई, बीजेपी की इस घटिया हरकत को रोका नहीं गया तो फिर तो मुल्क में इलेक्शन का मतलब ही खत्म हो जाएगा। नाज़रीन, इस वक्त रियासत उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, समाजवादी पार्टी के कद-आवर फायर ब्रांड नेता आजम खान मुसीबतें जिनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है क्योंकि योगी जिनके पीछे लग गए हैं, ऐसा वो खुद कहते हैं। तो खैर, अब बड़ी खबर ये आ रही है कि हेट स्पीच मामले में आजम खान को मुजरिम करार दे दिया गया, 3 साल की सज़ा सुनाई गई और अब सज़ा सुनाई गई तो उनकी असम्बली की रुकनियत जाना भी यकीनी हो गई। खैर, 25,000 के मचलके पर जमानत उनकी मंजूर हो गई है। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त आजम खान रामपुर शहर के मेंबर असम्बली है। आजम खान के वकील विनोद यादव ने बताया कि अदालत ने उनको 25,000 के निजी मचलके पर जमानत दे दी है। साथ ही उन्हें आला अदालत में अपील दायर करने के लिए 7 दिन का वक्त दिया गया है। 21 अक्टूबर को हुई गुज़िश्ता समात के लिए आजम खान MP MLA अदालत में नहीं पहुंचे थे, इसलिए इस मामले में हतमी फैसला नहीं दिया जा सका था और फैसला महफूज कर लिया गया था। अदालत के फैसले पर आजम खान ने कहा कि मुझे फैसला मंजूर है। उन्होंने कहा कि मैं बहुत कुछ झेल चुका हूं और फिर भी 2 पैरों पर चल रहा हूं, देखते हैं आगे क्या होगा। आजम खान, वज़ीर आज़म मोदी, वज़ीर आला योगी और उस वक्त के DM को नाज़िबा तबसरा करने का उन पर इल्ज़ाम था जिसके लिए आजम खान को सज़ा सुनाई गई। आइए नाज़रीन, एक बड़ी अच्छी खबर इस वक्त में निगाहों के सामने आ रही है। जी हाँ, फ़िरका वाराना इश्तिआल अंगेज़ी यानी भड़काऊ भाषण या भड़काऊ खबरों की बुनियाद पर न्यूज़ 18 पर जुर्माना लगाया गया। खैर, अच्छी तो खबर है लेकिन न्यूज़ 18 ही नहीं, पूरा एक टोला के टोला है आतंकियों का जो खास समाज को निशाना बनाता रहता है। तो अब देखिए, न्यूज़ 18 में एक खबर आई थी जब हिजाब का मामला चल रहा था कि हिजाब के पर्दे में अल ज़वाहिरी निकला, ऐसी उसने हेडलाइन लगाया था, आपको याद होगा। तो खैर, न्यूज़ 18 है और पूरा के पूरा ये आतंकी टोला है जो मुल्क में नफरतें फैलाता रहता है। न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी यानी NBDSA ने बुध को न्यूज़ 18 इंडिया पर 50,000 रुपये का जुर्माना आयद किया और चैनल को हिदायत दी कि वो कर्नाटक के हिजाब पर पाबंदी से मुताल्लिक एंकर अमन चोपड़ा के शो को हटाए। न्यूज़ लॉन्ड्री के मुताबिक NBDSA ने कहा कि चोपड़ा ने ज़ाब्ते अखलाक और नशरियाती मेयारात की शदीद खिलाफ वर्जी की थी और न्यूज़ इंडिया को इस तरह के हसास मौजू पर बहस कराएं, इस सिलसिले में अपने एंकरों की रहनुमाई और ट्रेनिंग देने की सलाह दी जाती है। यह ऑर्डर इंद्रजीत घोरपड़े नामी शख्स की 10 अप्रैल को दर्ज कराई गई शिकायत पर आया है। खैर, जिस शो पर सवाल उठाए जा रहे हैं वो 6 अप्रैल को नशर हुआ था। तो खैर, न्यूज़ 18 और न्यूज़ 18 के साथ ऐसे कई लोग हैं जो हर मामले पर एक ख़ास समाज को टारगेट करते हैं और हिंदू मुसलमानों में नफरतें फैलाते हैं। सब पर पाबंदी लगनी चाहिए और जुर्माने लगने चाहिए। आइए नाज़रीन, दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के मुस्लिम अक्सरियती इलाके में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बुलडोज़र चलाया। कहा यह जा रहा है कि पेशगी इत्तला के बगैर 40 से ज़्यादा मकानात ज़मींदोज़ कर दिए गए, गिरा दिए गए। मकीन दर दर भटकने पर मजबूर है। मकामी लोगों ने बताया कि उन्हें अपने घरों से सामान निकालने तक की भी मोहलत नहीं दी गई और मुखालिफत करने पर पुलिस ने उन्हें धमकाया और मारा पीटा। मकामी न्यूज़ पोर्टल मिल्लत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के छतरपुर असम्बली हल्के में वाक़ खड़क रिवारा में गुज़िश्ता दिनों 40 लोगों के घरों को बुलडोज़र चलाकर ज़मींदोज़ कर दिया गया है, जिसमें ज़्यादातर मकानात गरीब मुसलमानों के हैं और अब उनके पास रहने की भी कोई जगह नहीं बची है। बताया जा रहा है कि यह इलाका
150 सालों से आबाद है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ ज़मीन खरीद कर घर बनाया था, लेकिन बगैर किसी नोटिस के 21 अक्टूबर 2022 को पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया और मकानात को बुलडोज़र से गिरा दिया गया और पहले कोई भी इत्तला नहीं दी गई। कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर जावेद से, जो कि गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, बवासीर, शुगर गारंटी से बिल्कुल ख़त्म, गैस, तेज़ाब, लिकोरिया, लीवर, किडनी, गुर्दे में पथरी। अगर आप देश विदेश में उनसे दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं देश विदेश में। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। आइए नाज़रीन, इस वक्त श्रीनगर जम्मू कश्मीर से दो बड़ी खबरें फिलहाल मेरी निगाहों के सामने आ रही हैं। पहली बड़ी खबर आ रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों से खिताब करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुजाहरा अगर नहीं किया गया तो आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेगी। इन बातों का इजहार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हिंदवाड़ा में पार्टी ओहदेदारों और कारकुनों से खिताब करते हुए कहा है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर ने जुमेरात के रोज ये बात कही और कहा कि नौजवान पौध के बेहतर मुस्तकबिल और आने वाली नस्लों के लिए एक साजगार अच्छा माहौल छोड़ने के लिए हमें अपने हुकूक की बहाली के लिए मिलकर जद्दोजहद करनी होगी और अगर हमने ऐसा करने से इनहराफ किया तो आने वाली नस्लें हमें किसी भी सूरत में माफ नहीं करेंगी। वहीं पर कश्मीरी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि राजनाथ सिंह जो वजीर दिफा है, मरकजी वजीर दिफा है, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पाक मकबूजा कश्मीर यानी जिस हिस्से पर कश्मीर के पाकिस्तान का कब्जा है, राजनाथ सिंह ने कहा कि पाक मकबूजा कश्मीर को वापस लेंगे, पार्लियामेंट में मंजूर करारदाद पर अमल होगा। आइए बड़ी अजीब खबर आ रही है रियासत महाराष्ट्र की। जी हाँ, टीईटी इम्तिहान, जी हाँ टीईटी, टीचर्स अहलियती इम्तिहान, टीचरों की काबिलियत वाला इम्तिहान, उसका रिजल्ट नतीजा सामने आ गया। सुनकर आप ताज्जुब करेंगे कि टीईटी इम्तिहान में 96% से भी ज़्यादा टीचर नाकाम हो गए, टीचर फेल हो गए। 11 महीने के बाद रिजल्ट सामने आया, सिर्फ 3.79% उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। रियासत उत्तर प्रदेश के देवबंद में एक अदारा है दारुल उलूम देवबंद, जो पूरी दुनिया में जाना माना जाता है। वहाँ से ये खबर आ रही है कि दारुल उलूम में राबता का इजलास होने जा रहा है, तैयारियाँ बड़ी जोर शोर से जारी है। कुल यानी यूँ समझिए कि जो यूपी के मदारिस का सर्वे मुकम्मल होने और इसकी मीडिया में आई रिपोर्टों के दरमियान अजीम इल्मी दानिशगाह दारुल उलूम देवबंद में कुल हिंद राब्ता मदारिस इस्लामिया का इजलास होने जा रहा है, जिसके लिए दारुल उलूम में बड़े पैमाने पर तैयारियां जारी है। इजलास में मुल्क भर के 4,500 मरबूत मदारिस के जिम्मेदारान शिरकत करेंगे। मैं आपको बता दूं कि कुल हिंद राब्ता मदारिस इस्लामिया दारुल उलूम देवबंद मदारिस की सबसे बड़ी तंजीम है, जिससे पूरे मुल्क के 4,500 से ज़्यादा मदारिस इस्लामिया मुंसलिक हैं। ऐसा इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि मौजूदा हालात के मद्देनज़र मदारिस में असरी और जदीद तालीम की लाजमियत से मुताल्लिक भी इस इजलास में गौर व खौस किया जाएगा। आइए इस वक्त राहुल गांधी के नेतृत्व में क़यादत में जारी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बड़ी अच्छी खबरें आ रही है और भारत जोड़ो यात्रा में लाखों लोग कदम से कदम मिला रहे हैं। इस वक्त खबर आ रही है कि भारत जोड़ो यात्रा जब महाराष्ट्र में आएगी तो फिर शिवसेना, उद्धव, बाला साहेब ठाकरे भी शरीक होंगे और राष्ट्रवादी के सुप्रीमो शरद पवार भी शरीक होंगे। ऐसे ही आदित्य ठाकरे और दीगर सीनियर लीडरान शरीक होंगे, ऐसी खबरें आ रही है। वहीं पर मैं आपको बताऊं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना में दोबारा शुरू हो चुकी है। 3 दिन के वक्फे के बाद तेलंगाना के ज़िला नारायणपेट के मुख्तल मकाम से दोबारा शुरू हो गई है। मैं आपको बता दूं कि 23 अक्टूबर की सुबह राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक से तेलंगाना में दाखिल हुई थी और दिवाली के त्यौहार के पेश नज़र यात्रा को 3 दिनों तक
रोक दिया गया था। गुज़िश्ता कल सुबह 6 बजे से भारत जोड़ो यात्रा की दोबारा शुरुआत हो गई है और बड़ी तेजी से कदम आगे बढ़ रहे हैं और भारत जुड़ रहा है और नफरती चिंटू बौखला रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त रियासत महाराष्ट्र के पालघर जिला के तारापुर MIDC से बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है कि वहां पर वाक़े भगेरिया इंडस्ट्रीज में बुध की रात शाम तकरीबन यूँ समझिए कि 4:30 बजे एक बॉयलर फैक्ट्री में फट गया। बॉयलर फटने से आग लगी और 3 लोगों के हलाक होने और 12 लोगों के जख्मी होने की खबरें आ रही है। तमाम जख्मी मजदूरों को बोईसर के शिंदे अस्पताल में दाखिल कराया गया। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी है और 3 अफराद के फंसे होने का मजीद खदशा जाहिर किया जा रहा है। नाज़रीन, ज्ञान वापी मस्जिद मामले को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि ज्ञान वापी मस्जिद मामले पर समाअत, दोनों फरीकों की समाअत सुनवाई मुकम्मल हो गई है और अब 8 नवंबर को तारीख फैसले की मुकर्रर की गई है। ज्ञान वापी मस्जिद मामले पर वाराणसी कोर्ट में चल रही समाअत जुमेरात के रोज यानी गुज़िश्ता कल मुकम्मल हो गई। इस केस में अदालत ने अपना फैसला महफूज रख लिया है और फैसला 8 नवंबर को सुनाया जाएगा। दाद, खाज, खुजली का जड़ से इलाज डॉक्टर शेख नाजिम से कांटेक्ट कीजिए 8983547069 पर। जोड़ों का दर्द, पाइल्स, बवासीर, एसिडिटी, वजन का कम करना, गुर्दों और मसानों की पथरी, गुप्त रोग, बालों का झड़ना और सफेद होना, इन तमाम बीमारियों के इलाज के लिए हिंदुस्तान आयुर्वेदिक सेंटर जलगांव। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।